So this is guys like your reading comprehension passage, and I got an information saying that there were only 3 passages first, but as I can see through the different websites that there were 4 passages or reading comprehension ke passages, as I have experienced the last, I would say 5 to 6 years after 2016, passages were a bit of like readable. Okay, because I have started performing in a VRC section the last 4 5 years, and passages were readable. I would say that take a newspaper like The Hindu or the Indian Express. Okay, and then if you go through the major parts, the non-entertainment section of the newspaper, you know how to read it thoroughly and comprehend it properly. So in that scenario, passages were readable. What was difficult was to choose the best option out of the 2 favorite options. So that used to happen in CAT. And if you go through the passages CAT 17 and CAT 18, they were from major newspapers like New York Times. Basically, they have given many passages from New York Times, 1 2 passages from, you can say, 1 2 passages from theguardian.co.uk. So every year they take a very general topic, a very familiar topic, and then they have very difficult type of questions. You can say inference-based question in reading comprehension. But this year, I mean, in the morning slot, the information that you have here is from the first slot, that is morning section. Okay. So I'm trying to read the comments through through mobile phone, and if you're getting my voice properly, please write me once again if I have dealt with that. So sentence placement has got a new entry in the VA section. And one more thing which many people have not noticed, in the last 3-4 years, the reading comprehension section had used to have a percentage of, let's say, out of 30 to 24. So 24 by 32 or 4 by 24 by 32, 3 by 4. 75% of the question from VARC used to be from reading comprehension only. And this year also, we had 16 questions from reading comprehension, and total there were 24 questions. So what is the percentage of 16 out of 24? 16 by 24 into 100. If you do that, that will come around 2 by 3, that is 66.66%. So that is something that nobody has mentioned in the analysis since the morning, that the share of reading comprehension questions has decreased from 75% to 66.66%, right? Again, दोबारा मैं बोलता हूँ कि जैसे CAT 16, 17, 18, 19 देख रहा हूँ बिफोर कोरोना पीरियड में, तो वहां पे 34 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 24 क्वेश्चन तकरीबन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं, 6 पैसेजेस 4-4 क्वेश्चन करके. सो उस 24 आउट ऑफ 34 इज लाइक स्लाइटली लेस देन 75%, राइट? और अभी यानी कि आज के पेपर में आप देखेंगे 16 क्वेश्चंस आए हैं. गाइस, इफ यू कैन लिसन मी प्रॉपर्ली, प्लीज सेंड मी अ मैसेज. आई डोंट नो इफ यू गाइस आर लिसनिंग. Am I audible? ओह, रंजीत हैज मैसेज मी. ओके रंजीत, थैंक यू. क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी समझ लो आई एम ग्रोपिंग इन द डार्क, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर हाँ वो आवाज आनी बंद हो गई है. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम लोग बच्चों को ऐसे ही बोलते थे कि कैट के अंदर, थैंक यू रंजीत और शुभम, आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में रहिएगा एक्टिव, सो दैट आई कैन टेल यू, सो दैट आई कैन गॉज व्हाट इज हैपनिंग. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इन द लास्ट 4-5 यानी प्री पैंडेमिक एरा में अगर आप जाते हैं, क्योंकि पैंडेमिक के भी अब ये 3रा साल हो गया, पैंडेमिक का भी अब ये 3रा साल हो गया गाइस. तो दैट इज समथिंग दैट यू ऑल शुड अंडरस्टैंड. पैंडेमिक का 3rd ईयर, राइट? सो 20, 21 और 22 पैंडेमिक के 3rd ईयर में हम लोग आ गए हैं. और एक बहुत बड़ा मेजरली जो चेंज देखा है मैंने कैट में, टाइम की कमी. टाइम की कमी जो है, पहले 3 घंटे का एग्जाम है जिसमें हम पूरी तरह से एडजस्ट हो गए हैं कैट 15 से. सो
आप इसको रिपीट कीजिए, कैट 15, 16, 17, 18, 19, 5 साल लगातार पेपर एक जैसा, यानी 34, 32, 34 फॉर्मेट, 34 क्वेश्चन फ्रॉम वीआरसी, 32 क्वेश्चन फ्रॉम LRDI एंड 34 क्वेश्चन अगेन फ्रॉम क्वांट्स। और उसी ऑर्डर में बच्चों आप इस लिंक को बाकी फ्रेंड साथ शेयर करें, स्टेटस पे लगा लें, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूट्यूब में हूँ, आई ऑल्सो नीड एनकरेजमेंट। अगर आज का सेशन सही जाता है तो मे बी फ्रॉम वेडनेसडे आई विल ट्राई टू टेक लाइव क्लास फॉर एवरीबॉडी फॉर ज़ैट बेस्ड। सो आई एम प्लानिंग टू हैव 30 क्लासेस ऑन ज़ैट, जिसके बारे में मैं बात करूंगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ज़ैट। तो रंजीत, आई विल रिक्वेस्ट शुभम, उमाकांत जी, एवरीबॉडी प्लीज ट्राई टू share the link to your friends, those who have not even written CAT. Okay, so my point is कि जो वो 5 साल गया, CAT 15, 16, 17, 18, 19, these 5 years, what had happened कि वहां पर जो है क्वेश्चन का एक फॉर्मेट सेट हो गया था माइंड में बच्चों के। पैंडेमिक जैसे आया, क्योंकि मैंने पैंडेमिक में भी 2 बार कैट दिया, यानी आई रोड कैट 20 and 21. This year I decided not to write CAT because of some reason. तो लास्ट ईयर भी जब मैं कैट देने गया हूं, उसके पिछले साल भी, इवन आई आफ्टर बीइंग अ टीचर एंड मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर, आई वाज नॉट एबल टू कोप अप विद द रिडक्शन इन टाइम। लेट मी टेल यू वेरी वेरी ऑनेस्टली, ये जो 40 मिनट मिल रहा है ना, तो इसमें जो हम हमारे उमाकांत जी पढ़ाते हैं इनवर्स रिलेशन वाला टॉपिक, वो काम नहीं कर रहा है। यानी कि ऐसा आप ना सोचें कि 1 घंटे में अगर LRDI का 12 क्वेश्चन सॉल्व करना 90 परसेंटाइल होने का प्रूफ था, तो आज 40 मिनट में 8 क्वेश्चन होने से यू कैन नॉट गेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। आप ऐसा अंदाज नहीं लगा सकते, क्योंकि टाइम तो 20 मिनट्स कम हुआ पर सेक्शन, ईच सेक्शन में टाइम 20 मिनट्स कम हुआ। अर्लियर इट वाज 16 मिनट्स वाला एग्जाम, अभी इट इज 40 मिनट्स वाला एग्जाम पर सेक्शन। ना ये जो 3:2 का रेशियो है, आपका कट ऑफ भी उस रेशियो में नहीं आएगा, बल्कि कट ऑफ और भी ज्यादा कम हो जाएगा, कट ऑफ और भी ज्यादा कम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर LRDI में पहले 12 क्वेश्चन करना महान बात होती थी, तो अभी 40 मिनट में 6 क्वेश्चन करना महान बात होगी। यानी 50% पे आ गया है, 50% पे आ जाएगा आपकी चीजें, नॉट 66%। ठीक है, क्योंकि वक्त की कमी से एक बहुत बड़ा लॉस जनता को हो रहा है, वक्त की कमी से बहुत बड़ा लॉस हो रहा है जनता को। क्या हो रहा है लॉस, कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ रहे हैं बिफोर चूजिंग विच वन टू सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 40 मिनट में आप LRDI में मान लीजिए 2 या 3 सेट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको सारे सेट को देखना होगा, उसमें टाइम जा रहा है। पहले भी वो टाइम जाता था, बट अर्लियर वो 1 घंटे के ऊपर था, अभी वो 40 मिनट के ऊपर में है। सो परसेंटेज ऑफ टाइम being wasted on deciding which set to take, which reading comprehension passage to attempt, and which quants question to attempt, percentage wise is higher. तो मेरे हिसाब से इसीलिए आप देखेंगे कट ऑफ जो अब एग्जाम्स का काफी कम हो जा रहा है। यानी अगर आज मैं मॉर्निंग स्लॉट की बात करूं, फर्स्ट स्लॉट की बात करूं, तो LRDI में एक सेट भी करने वाला, एक सेट भी कोई कर दे LRDI में, तो उसका फेयर परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल पे आज LRDI जो है फर्स्ट स्लॉट में बात करूं तो बॉयज एंड गर्ल्स का वेन डायग्राम आया था, फंडिंग टोकन्स, LR पजल, गोल्फ, गेम्स एंड टूर्नामेंट का, एंड मेट्रो रूट्स एंड नेटवर्क। ये कॉमन टॉपिक है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसी लाइन में पेपर तैयार किया गया था। तो कैट जो है अपना पुराना रूप में वापस आ रहा है, इफ आई हैव टू से फेयरली। जब हमने पहली बार कैट दिया 2005 में, तो कैट अपने पुराने रूप में वापस आ रहा है। ठीक है बच्चों, बेसिकली हम लोग बात करने वाले थे कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर कैट। तो हमारा टॉपिक ये था आज का, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर कैट। कैट तो हो गया, अब आगे क्या करें। तो 2 उपाय है आपके पास। एक तो आपने अगर ज़ैट का फॉर्म भरा है, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम उड़ीसा, जितने बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं वो झारखंड, उड़ीसा या बहुत ज्यादा तो कलकत्ता के बच्चे होते हैं। तो आप अगर उड़ीसा के बच्चे हैं या झारखंड के हैं, तो आपके पास अभी तो एक एक्स रह गया लाइफ में, XIM या XISS। रांची में बहुत ही फेमस कॉलेज है HR के लिए, XISS।
दोनों यानी XIM और XISS दोनों Z बेस्ड कॉलेजेस हैं। जमशेदपुर में एक और कॉलेज है एक्सएलआई। ये 3 कॉलेज आपके सामने हैं। एक्सएलआई इज दो बिट डिफिकल्ट टू गेट। जो बच्चे का एक्सएलआई में होने वाला है, उस बच्चे का कैड थोड़ा बहुत ठीक हुआ होगा आज, और उसकी इंग्लिश यानी कि वर्बल एबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। तो मेरे हिसाब से आपके पास एक अचीवेबल कॉलेज जो है वो XIMB है, और दूसरा जो है XISS रांची है। XISS रांची में जो HR है वो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट होती है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट। मेरे 2 स्टूडेंट्स जमशेदपुर के, दे गॉट अ प्लेसमेंट ऑफ आई मीन बैक देन इन 2016, तब उनको प्लेसमेंट 17 लाख रुपीस की लगी थी। सो HR जो है वो बहुत ही अच्छा है रांची का। आई विल एडवाइज ऑल ऑफ यू टू अप्लाई टू द XISS HR प्रोग्राम। XIM के बारे तो आप सब जानते हैं, स्पेशली जो बच्चे भुवनेश्वर के बाहर के हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मतलब ये बहुत ही ज्यादा उनके लिए, जो बच्चे भुवनेश्वर के बाहर के हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा XIM का जो लेवल है बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है उनके नजर में, क्योंकि उनको डोमिसाइल कोटा नहीं मिलता है एंड दे लाइक आर डाइंग टू गेट अ सीट इन XIM, राइट। लेकिन जो बच्चे भुवनेश्वर के हैं डोमिसाइल कोटा के बेसिस पर, आपको पता है हमारे पास यहाँ 2 कैंपस है, एक मेन कैंपस और एक जटनी कैंपस, और दोनों को अलग अलग स्कूल का नाम दे दिया गया है। जटनी कैंपस को पता है क्या नाम दे दिया गया है? स्कूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। और वहां वाले कैंपस जो आपका मेन कैंपस है XIM का, उसको अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो अगर ये सारी बातें छोटी मोटी नुआंसेस आपको मालूम है, तो आपको पता है कि अभी हमारे सामने 2-3 एग्जाम्स पड़े हुए हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो। जैसा मैंने कहा कि आई विल ट्राई टू कम लाइव थ्रू यूट्यूब for Z classes to help you in Z, because we are still left with something around 40 days for Z, right? और दूसरा जो एग्जाम है वो है XGMT का। XGMT का जो एग्जाम है वो आपका जनवरी के लास्ट संडे में होता है, जिसके लिए हमारे पास तकरीबन अभी 2 महीने हैं। और आपको पता है कि क्वांटिका ने अपना जो भी मुकाम आज पाया है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ XGMT, है ना। तो लगभग 500 बच्चे जो हैं इस बार भी हमारे वेबसाइट पे साइन अप करेंगे फ्री मॉक्स के लिए। और उसके बाद जो है हम लोग XGMT के जो पेपर्स हैं, प्रीवियस पेपर है, उसके लाइन में जो हमने अपने मॉक्स तैयार किए हैं उसके भी एनालिसिस हम लोग रिलीज करेंगे। तो बच्चों आप ये देखना कि कैट का जो आज पेपर हुआ है वो किसी भी मायने में इन एनी रेस्पेक्ट इट शुड नॉट रिड्यूस योर मोरल इन एनी वे, क्योंकि 90% बच्चे जो हैं कैट जो दे रहे हैं वो किसी और एग्जाम के जरिए किसी कॉलेज में उनका एडमिशन होने वाला है, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि टॉप 10% बच्चों को ही कैट जो है सहारा देगा। जैसे अगर आपका 80 परसेंटाइल के ऊपर सारे मॉक्स में रहा है, देन ओनली यू हैव अ चांस। कैट का जो है ना एक लाइन ही अलग है। रीजन बीइंग इज लाइक LRDI अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है वहां पे, इफ यू नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ, so that is going to be very very difficult for you। बच्चों आज का मैं लाइव सेशन यहाँ खत्म कर रहा हूँ बिकॉज आई एम रियली नर्वस एंड आई डोंट नो व्हाट टू से नेक्स्ट। तो जब तक मुझे क्लियरली पता नहीं चल जाए आप सबसे कि आज का सेशन में आवाज कैसे आ रही थी या वो स्क्रीन दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, ये बस एक ट्रायल था ताकि हम लोग Z की क्लासेस में कंप्लीटली और कॉन्फिडेंटली आ सकें, क्योंकि और Z के कुछ क्वेश्चंस कर सकें, डिसीजन मेकिंग का हो। Z के मामले में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि Z का जो पैटर्न है वो सेट है सदियों से, 30 इयर्स से मैं देख रहा हूँ उसके पेपर को, तो वो सेट पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसने तय कर लिया है कि हाइट एंड डिस्टेंस का हमें क्वेश्चन देना है, ठीक है, 3D हाइट एंड डिस्टेंस का 3D वो हर साल देगा। Z ने ये कह दिया कि मुझे जो है प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन देना है तो वो हर साल देगा। Z ने तय कर लिया है कि मुझे टैक्स कैलकुलेशन पे क्वेश्चन देना है तो वो हर साल देगा। Z ने तय कर लिया है कि मुझे 20 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग का देना है तो वो हर साल देगा। Z ने तय कर लिया है कि Z के जो पजल्स है, ठीक है, Z में जो पजल्स मुझे देना है हर साल देना है, तो वो मेरा कहने का मतलब है Z बहुत डिफिकल्ट है बट ऑन एक्सपेक्टेड लाइन है, और उसी एतबार से कट ऑफ भी बहुत कम हो जाता है उसका, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी कैट का एग्जाम खत्म हुआ है और आज हम सब ये जान चुके हैं कि हम क्यों तबरे साल भर से नॉन कैट एग्जाम के ऊपर इतना स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें कि एक बच्चा जब तक तीनों सेक्शन में कंसिस्टेंटली परफॉर्म ना करे। फॉर एग्जाम्पल टू गेट अ कॉल फ्रॉम IIM रांची,
सिंपल, आई एम रांची से आपको कॉल चाहिए, आप कोटा पे बिलोंग, किसी भी कोटा को बिलोंग करते हैं, तो उसमें आपको तकरीबन 70% रखना होगा तीनों सेक्शन में परसेंटाइल, और 85 परसेंटाइल फॉर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कैट में तीनों सेक्शन में अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाते हो, तब जाकर के आप बोल सकते हैं कि फेयर एग्जाम हुआ। लेकिन जैट में क्या है, जैट में ऐसे कॉलेजेस हैं अदर देन एक्सेल राय एंड XIMB जो आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं देख रहे हैं जैट में। जैसे मैंने एक्साइसेस रांची का बात बताया, ठीक है, एक्सेप्ट 1 और 2 डिसिप्लिन, इवन XIM भुवनेश्वर में भी सेक्शनल कट ऑफ देखा जाएगा अगर आपने पर्टिकुलर BM और HR के लिए अप्लाई किया है। तो किसी बच्चे का अगर क्वांट्स अच्छा है और LRDI में प्रॉब्लम है तो उसको कैट में दिक्कत हो जाएगी। किसी बच्चे को का दोनों सेक्शन बहुत अच्छा है, IIT का इंजीनियर है, बट ही इज नॉट गुड विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कैट में दिक्कत हो जाएगी। सो बच्चों, कैट एक अलग ही लाइन पे एग्जाम चलता है, वो हो गया है, अब उसके बिना पे आप अपना कुछ जज मत करें। मेरे पास ऐसे टन्स ऑफ स्टूडेंट हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट है जिसने कैट में परफॉर्म नहीं किया, एनमैट में किया, कैट में परफॉर्म नहीं किया, जैट में किया, कैट में परफॉर्म नहीं किया, IIFT में किया, कैट में परफॉर्म नहीं किया, GMAT में किया, कैट में परफॉर्म नहीं किया, XGMT में किया, MHCT में किया, टिस्नेट में किया। मेरे पास हर साल बच्चे आते हैं, IMI दिल्ली चले गए, MDI गुड़गांव चले गए हैं, और IIM कलकत्ता चले गए हैं नॉन कैट एग्जाम देके। IIM कलकत्ता नॉन कैट एग्जाम लेकर के, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को केवल कैट के यार्डस्टिक से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, आपके स्क्रीन पे देखेंगे मेरा नंबर आ रहा है, आप इस नंबर को क्वांटिका के नाम से सेव कर लीजिए। फॉर एनी नॉन कैट एग्जाम आप मुझे पिंग कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं आज का सेशन ही खत्म करता हूँ। थैंक यू।